हेलो टू एवरीवन। आज एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आई एम गिविंग यू द आइडिया अबाउट द इमेजिनरी नंबर. व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, राइट? तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी नंबर एंड इट्स एग्जिस्टेंस, what we have to do, first of all, what is imaginary number, राइट? व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? तो इमेजिनरी नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए 10th क्लास में आपने किया था, इन 10th क्लास वी हैव दिस इज इक्वल टू 0. Whenever we solve this equation, x square minus 1 is equals to 0, we know it is equals to 1. If x square is equals to 1 means x is equals to plus minus this, so it becomes plus minus 1, right? It means x square is equal to 1 implies that the value of x may be positive 1 or negative 1. There are the two positive values of x, 1 and minus 1, for the given equation. But what will you say when x square plus 1 is equals to 0? What will you get? So x square is equals to minus 1 and x is equals to root of minus 1. What will you do? So this number is called iota. For our convenience, whenever we get this type of conditions, then we replace it by iota. This is the number I and it is taking as iota, right? तो स्मॉल आई से इसको डिनोट किया जाता है, इट इज एन इमेजिनरी नंबर. और इसको हम कैसे लिखते हैं? आयोटा से राइट करते हैं. आयोटा से इसको बोलते हैं. स्मॉल आई से आपको इसको राइट करना है. तो एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल्स टू आयोटा. तो बेसिकली when we get these kind of equations, then their solution will be imaginary. For our convenience, we are taking root of minus 1 is equals to iota, and these are the complex numbers. To solve this kind of problems, suppose we have रूट ऑफ माइनस वन. आज के बाद अगर आपके पास रूट ऑफ माइनस वन है तो मैं उसकी वैल्यू सॉल्व कर सकता हूं, है ना? 10th क्लास में हमसे कहा जाता था देयर एग्जिस्ट नो एनी रियल नंबर फॉर विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. आज भी यही है ना? कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल हो. बट कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इमेजिनरी नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन के इक्वल होगी. दैट विल बी आयोटा, राइट? तो रूट ऑफ माइनस नाइन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ माइनस नाइन? 10th क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दिया करते थे, अब उनको कंटिन्यू करेंगे, बस इतना डिफरेंस है. तो रूट ऑफ माइनस नाइन इज इक्वल्स टू minus 1 under root minus root of 9, that is 3 iota, because its value is 3 and this is iota, so we can replace it by 3 iota. Obviously this is also an imaginary number, यानी कि square root of negative quantity, square root of negative quantity is always an imaginary number, right? Suppose कहीं पर हमारे पास आया minus 64, so you will say its value will be 8 iota. In similar way, because root of 64 is 8 and minus 1 square root is iota, so its value will be 8 iota. So in this way we can solve the square root of the negative number, right? After that, there is very important result. What is that result? Root of a into root of b. Root of a into root of b is equals to root of ab. Is it correct? Yes. If A and B both are positive, right? If A and B are positive, then it is obviously true. If A is positive, B is negative, there is no issue. If A is negative, B is positive, no problem at all, right? But if there is both are negative numbers, so A is negative number, B is also negative number, then this type of condition does not exist. So you must note this condition: root of A into root of B does not equals to root of AB if A and B both are the negative number. तो इसका मतलब इन तीनों के लिए तो बात सही है, बट अगर हम कहीं पर लिखते हैं रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट बी when A and B both are
negative, then it is not true. Means root a into root b not equals to root of ab. ठीक है, why it happens, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है. सपोज वी हैव 1, राइट, we can write it as -1 into -1, or we can say it is root -1 root -1. This is iota and this is also iota, it becomes iota square, and iota square will be -1. Why? Because if iota is equals to root -1, then iota square will be -1. It means we can replace iota square by -1. और जब आप iota square को -1 लिखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 1 किसके इक्वल हो गया, -1 के, है ना. जब 1 -1 के इक्वल हो गया तो फिर तो सारा गणित, सारा मैथमेटिक्स फेल हो गया, है ना. तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है, दिस इज रॉन्ग. ये जो स्टेप हमने यूज किया है ये रॉन्ग है, इट इज अ फॉल्स स्टेप. ठीक है, तो कई बार लिखा होता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लिखा होता है एक्सप्लेन द फॉलिसी. मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, और उससे पहले रूट ऑफ two negative numbers cannot separated, or root of a into root of b is not equals to root of ab if both are the negative numbers, right. तो अब यहां पर सपोज हमारे पास, तो इट मीन्स अगर हमारे पास है √9 -64 स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम -9 इंटू -64 राइट नहीं कर सकते. इट इज द रॉन्ग वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. बट अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नेगेटिव साइंस को स्प्लिट करेंगे. ठीक है, इसके नेगेटिव साइंस को हटाएंगे तो -1 स्क्वायर रूट √9 -1 square root with 64 square root. So it becomes iota. This is 3, this is iota, and this is 8. So your value will be 24 iota square. What is the value of iota square? That is -1. So its value will be -24. So in this way, we can solve this kind of problems when root of a into root of b and a and b both are the negative numbers. तो कभी कभी क्वेश्चंस में दिया होता है, आपको इस टाइप से दे देंगे यार, व्हाट विल बी द एक्सप्लेन द पॉलिसी, तो वेयर इज द फॉल्स स्टेप बेसिकली. ठीक है, तो फॉल्स स्टेप का मतलब कहां पर हमारी गलती है, वो ये स्टेप है. तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पावर्स ऑफ आयोटा. व्हाट इज पावर्स ऑफ आयोटा? तो पावर्स ऑफ आयोटा में आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है. पावर्स ऑफ आयोटा मीन्स आयोटा इज रूट ऑफ -1. तो जहां पर भी हमें रूट ऑफ -1 दिखाई देगा उसको हम आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रूट ऑफ -1 को किस में चेंज किया, आयोटा में चेंज किया. तो आयोटा इज रूट ऑफ -1. तो जहां पर भी हमें रूट -1 दिखाई देगा उसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे, आयोटा. अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा. तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अब आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल हो गया. अब एक काम करते हैं, आयटा क्यूब को बाय यूजिंग अलजेब्रा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर इनटू आयटा टू द पावर 1. आयटा स्क्वायर becomes -1, that becomes minus iota, and simple iota to the power 4 is taking the square of this iota square, we get iota to the power 4, and -1 square becomes 1. So iota to the power 4 is equal to 1. So basically we have iota to the power 4 is equal to 1, iota cube is equals to minus iota, and iota square is equal to -1, and iota is obviously is equal to root of -1. So basically there are the 4 powers of iota. Why there are 4 types of iota? क्योंकि अगर आप पावर्स को फर्दर सॉल्व करेंगे, iota to the power 5 सॉल्व करना चाहते हैं हम, सपोज, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है iota to the power 5, तो आप क्या लिखेंगे, iota to the power 4 into iota, this becomes 1. again we have iota. देखिए iota हमने पहले भी देखा था, रूट ऑफ -1 है, तो आयटा आ गया. आयटा टू द पावर 7 को सॉल्व करूंगा तो इसको लिखूंगा आयटा टू द पावर 4 आयटा क्यूब, दिस इज 1, दिस इज
माइनस आइटा। तो बेसिकली रिपीट होंगी वैल्यूज अगर आप फर्दर पावर्स को इंक्रीज करते हैं, i⁻7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, तो वापस मेरे पास क्या होगा, यही की यही वैल्यूज आएंगी आपके पास, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आइटा। तो इसलिए बेसिक जो पावर्स ऑफ आइटा है वो कौन सी है, देयर आर द 4 पावर्स। आइटा इज √-1, आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा एंड आइटा टू द पावर 4 इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइटा टू द पावर 243? सपोज हमारे पास कोई भी आइटा की 4 से ज्यादा पावर है, ठीक है, 4 से ज्यादा पावर है, तो आप क्या करेंगे, 243 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 243 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट विल यू गेट, 24 and 3 will be the remainder and this is 60। तो इसका मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं 4 into 60 plus 3, राइट, 4 into 60 plus 3, 243। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रूल दिस इज आइटा क्यूब। एक अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप लिखेंगे 4 to the power 60 into आइटा क्यूब, दैट बिकम्स 1 to the power 60 1 एंड दिस इज आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। जो आपने 4 पावर्स ऑफ आइटा किए उनका यूज करके आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट राइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है, जहां पर भी आइटा टू द पावर 4 आपको दिखाई दे वहां हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसका मतलब आइटा टू द पावर 4 अगर 1 है, आइटा टू द पावर 4 अगर 1 है तो आइटा टू द पावर 8 भी क्या होगा, 1 होगा। आइटा टू द पावर 12 भी क्या होगा, 1 होगा। आइटा टू द पावर 16 भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब आइटा टू द पावर 4n is 1 where n is any natural number or you can say n is any integer. Whether the value of n is positive or negative, iota raised to the power 4n must be 1. So iota raised to the power 4n is 1 as n is any integer, right? So after taking this result, we can see iota to the power 243, you can separate the multiple of 4 that is 60 times। इसको आप हटा दीजिए तो ये वैल्यू तो पूरी 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आइटा क्यूब। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, हम इसको माइंड में भी कर सकते हैं और 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आपके पास जो रिमाइंडर आएगा बस वो ध्यान रखिए, 243 को 4 से डिवाइड किया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 आ गया, 3 आ गया तो 3 ध्यान रखो आप। तो इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, आइटा क्यूब बिकम्स माइनस आइटा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मेरे पास आ गया आइटा रेज टू द पावर 401, सपोज, है ना। अब मुझे पता है 400 क्या है, 4 का मल्टीपल है। जब 400 4 का मल्टीपल है तो उसको हटा देता हूं ना, मैं 400 को हटा देता हूं, सीधे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइटा आ जाएगी, खत्म बात, हमने कुछ करना ही नहीं है, है ना। तो 4 का मल्टीपल आप हटा दीजिए जो भी है और जो रिमाइंडर है वो राइट कर दीजिए, तो आइटा टू द पावर 1 बिकम्स आइटा, दैट इज सिंपल। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है। तो इसका मतलब आपको एक मैंने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया पावर्स का, उसके थ्रू आइटा टू द पावर 4n क्या हुआ आपका, 1 के इक्वल हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आइटा टू द पावर 4n +2 मुझे दिया हुआ है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको आइटा स्क्वायर लिखूंगा, इट्स वैल्यू इज -1। n चाहे कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, अगर मैं लिखता हूं 4n + 3 दैट इज आइटा क्यूब, दैट इज माइनस आइटा। तो इस तरीके से शॉर्ट वे में हम इनको इस रिजल्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। वी हैव दिस आइटा रेज टू द पावर n प्लस आइटा रेज टू द पावर n +1, iota raised to the power n +2, iota raised to the power n +3. What will be its value? That is very good question and n is also an integer again, right? तो इसका मतलब अगर मैं ये लेकर चलता हूं तो सबसे पहले देखिए इसको मैं क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से राइट कर रहा हूं and you have to take iota raised to the power n common, simple। अगर मैं इसमें से iota raised to the power n common लेता हूं by using algebra, simple algebra, that becomes iota square iota cube and iota raised to the power n will be this -1 minus iota, because iota square is -1 and iota cube is equal to minus iota। by doing this iota to the power n into 0 becomes 0। oh, इतनी सारी वैल्यूज होने के बावजूद भी हमारे पास क्या आ गया,
जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूड पावर्स है। आप देखिए एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री आर द कॉन्टिन्यूड पावर्स ऑफ आयोटा। तो कॉन्टिन्यूड पावर्स ऑफ आयोटा का जो सम होता है, द सम ऑफ द कॉन्टिन्यूड पावर्स ऑफ आयोटा, फोर कॉन्टिन्यूड पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर मेरे पास इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंपल सपोज मेरे पास क्वेश्चन आया कि इवेल्युएट 44 iota to the power 45, iota to the power 46, iota to the power 47, what will be its value? तो आप सीधा लिखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो के बराबर होगी। क्यों होगी भाई जीरो के बराबर? क्योंकि 44, 45, 46, 47 क्या है, फोर कॉन्टिन्यूड पावर्स ऑफ आइटा है। तो जहां पर भी फोर कॉन्टिन्यूड पावर्स दिखाई देंगी उनको हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। उनका सम अगर आपसे पूछा हुआ है तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, और ये इन पर बेस्ड हम कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। देखिए सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, आइटा रेज टू द पावर 243, 244, 245, 246 एंड डिवाइडिंग बाय दिस वैल्यू। अब देखिए इसको सोचने की जरूरत ही क्या है, मेरे पास रिजल्ट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोर कॉन्टिन्यूड पावर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। नीचे चाहे कुछ भी होता रहे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो के बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाय द वे कॉन्टिन्यूड पावर्स नहीं है, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए 432 iota to the power 532 1 upon iota to the power 404 iota to the power 403, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कीजिए। 430 में 432 में ये देखिए वेदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। ठीक है, इसका ये 4 का मल्टीपल है, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मैं इसको रेड कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे 4 का मल्टीपल है। तो 4 के मल्टीपल को तो मुझे जरूरत ही नहीं है, उसको मैं सीधा 1 लिख सकता हूं। अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो उसको सीधा हम 1 लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या ये 4 का मल्टीपल है, चेक करना पड़ेगा 4 का मल्टीपल है या नहीं। इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इसको भी साइड कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये 4 का मल्टीपल है, यस इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उसके बाद ये क्या है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसमें क्या आएगा आपके पास, 3 रिमाइंडर आएगा। तो इन शॉर्ट by using all the results which we have already discussed, उसके हिसाब से मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आइटा क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइटा क्यूब, दैट इज माइनस आइटा। इसका मतलब हमारे पास हो गया 3 माइनस आइटा। अब एक प्रॉब्लम है, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बात क्लियर करूंगा। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर आयोटा है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, बट वेन एवर आई विल गिव यू द आइडिया about the complex numbers, then I will explain what will you do in the next step. But we are solving only the powers of iota, so concerned with that concept I am taking this one 3 upon 1 minus iota, right? तो इस तरीके से हम पावर्स ऑफ आइटा से बाहर आ गए। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हो, ठीक है, एक्सप्रेशंस हैं, उनकी वैल्यूज आपको निकालनी है सिंपल, तो उसमें भी हम पावर्स ऑफ आइटा का कभी कभी यूज करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइटा स्क्वायर आइटा टू द पावर 4 आइटा टू द पावर 10 मल्टीप्लाइंग विद 2 प्लस आइटा। मान लो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल अलजेब्रा यूज करना है आपने। पहले आप पावर्स को सॉल्व कर लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, -1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी आयोटा, क्योंकि 4 का मल्टीपल छोड़ देंगे, इसमें भी 4 का मल्टीपल 8 छोड़ दीजिए, 2 आएगा आपके पास, दैट इज -1 एंड 2 प्लस आइटा। और फिर हमारे पास ये कितना हो गया, आइटा -2 मल्टीप्लाइंग विथ 2 प्लस आइटा। तो बेसिकली इट इज आइटा -2 एंड आइटा +2। वी कैन यूज द algebra आइटा स्क्वायर -4, आइटा स्क्वायर इज -1, तो इट्स वैल्यू बिकम्स -5। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व the powers of iota. So today we are
स्टॉपिंग हियर। एंड इससे पहले जो हमने आप अभी जो कॉन्सेप्ट दिया आपको, किसका दिया हमने, कि बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है, आयोटा क्या होता है, ठीक है। आयोटा से रिलेटेड जो उनकी पावर्स हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एंड दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर of the complex number. So now we will go further for this topic in our upcoming videos. Please wait, watch, and like, share, and subscribe our channel on regular basis. Thank you.